اور خدا کا بندہ پولس نے کہا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سننا کس میں؟ دنیا کی باتیں سننے سے نہیں, دنیا کے لیکچر پڑھنے سے نہیں, کالج یونیورسٹی کے اندر جانے سے نہیں, بہت بڑی دانشوروں کی باتیں سننے سے نہیں ہے. جب آپ خدا کا کلام سنیں گے تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ ایمان پیدا ہوگا. کلام سننے سے آگے چل کر خدا کا بندہ عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت جس میں کسی نے نکالی ہے ذرا پڑھا. اسی لیے میں نے پہلے آپ کو عبرانیوں 11 باب دیکھیے گا. عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت سے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بغیر ایمان کے یسوع کو پسند آنا ناممکن ہے. یعنی ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس کے وسیلہ سے آپ یسوع کو پسند آ سکتے ہیں. تو وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ کلام سننے سے. جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے یسوع کو پسند آنا ناممکن ہے. جب آپ نے خدا کا کلام سنا آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. آپ نے خدا کا کلام سننے پر نہیں رہنا. آگے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ایمان جب پیدا ہو گیا آگے ہم نے ایمان کو زندہ رکھنا ہے. تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ کلام کے اندر بیان ملتا ہے کلام سننے والے نہیں میرے سے کیا کرو عمل کرنے والے بن جاؤ. جب آپ کلام سن کر سنو گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. جب آپ عمل کرو گے آپ کا سنا ہوا کلام آپ کی زندگی کے اندر زندہ رہے گا. اور کلام کے اندر لکھا ہے جس طرح بدن بغیر روح کے مردہ ہے اسی طرح کلام بغیر عمل کے کیا ہے مردہ ہے. اور ایمان پیدا ہو گیا. آپ نے خدا کا کلام سنا اور اس پر عمل کیا. ایمان آپ کا زندہ ہو گیا کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اس کا کلام زندہ ہے اور آپ کا ایمان زندہ ہوگا. تو پھر آپ خدا کو پسند آئیں گے. کلام کے اندر بیان ملتا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن. آپ عبادت کر رہے ہیں, حمد و ستائش کر رہے ہیں, دعائیاں دے رہے ہیں, شکر گزاریاں دے رہے ہیں, اگر ایمان پر قائم نہیں ہے تو آپ یسوع کو پسند نہیں ہے. تو جب آپ اس کو پسند نہیں ہے تو آپ کا دیا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آگے ایمان جب زندہ ہو گیا آگے ایمان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. صرف سننے پر ہی نہیں, صرف عمل کرنے پر ہی نہیں, ایمان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے. ایمان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. ایمان کیسے بڑھے گا؟ مسلسل دعا کرنے سے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی 3 بار دعا کرتے ہیں؟ جب آپ دعا نہیں کریں گے میرے عزیزو آپ کا ایمان بڑھے گا نہیں. آپ کا ایمان سننے والا ہوگا, آپ کا ایمان عمل کرنے والا نہیں ہوگا. جب آپ عمل کرو گے, جب آپ دعا میں بڑھو گے, آپ 1 بار نہیں 7 بار جب دعا کرو گے اور جب خدا کی حضوری میں آگا آپ کا ایمان بڑھے گا. آپ کے ایمان کے اندر روحانی ترقی آئے گی. آپ کے ایمان کے اندر خدا اضافہ کرے گا اور دیکھنے والے بھی دیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے. تو جب آپ نے کلام سنا ایمان پیدا ہو گیا, عمل کیا, زندہ ہو گیا, مسلسل دعا کی, آپ کا ایمان بڑھتا چلا گیا. آپ اپنے ایمان کو بڑھا تو دیا ہے. آگے آپ نے بالغ ایمان کے اندر جانا. وہ کیسے جائیں گے؟ بالغ ایمان کے اندر کیسے ہم جائیں گے؟ جب آپ خدا کی فرما برداری کریں گے, جب آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تو آپ کا ایمان بالغ ایمان کے اندر آئیں گے. دیکھنا بھی چیزوں ایمان ہے, سننا بھی ایمان ہے, بولنا بھی ایمان ہے, سوچنا بھی ایمان ہے, چال چلن بھی ایمان ہے, آپ کے ارادے اور منصوبے بھی ایمان ہے. تو جب ایمان کا پانی اس دنیا میں آ چکا تو ہم شریعت کے مطابق نہ رہے. آپ قرآن کو سمجھیں کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے. تو ایمان کا بانی کون ہے؟
के बानी को जानेंगे, आप निजात का बानी कौन है? निजात का बानी कौन है? वो भी यीशु है। अमन का बानी कौन है? वो भी यीशु है। मेरे अजीजों, जब आपका बानी का ईमान होगा तो फिर मुतदार रूनुमा होंगे, फिर ईमान ज़ाहिर होगा। मरकज़ की अजीब उसका 16 बाब के अंदर 16वीं आयत में लिखा है, जब गोया होगा ईमानदारों के दरमियान मुजदात होंगे। ये आपका बालिग ईमान है, ये आपका बालिग ईमान है। और जब बालिग ईमान होगा तो फिर खुदा कहता है अपने मंसूब क्या कहते हैं कि मैं तुझे नींद में दे दूं, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं। आप कुरान में लिखा है मांगा तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो जब बालिग ईमान के अंदर आते हो तो फिर मांगने की भी जरूरत नहीं। अगर आप सुनने पर रहे, अमल करने पर ना रहे, आप यकूब का जो खाता है पहला खाता है उसके अंदर जाए, उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत यकूब का खत उसका 2 बाब 22 से 25 आयत। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमान के साथ मिलकर हसद किया और ईमान से ईमान कामिल हुआ। और ये नतीजा पूरा हुआ कि पहला बाब उसकी 22 से 26 पहला बाब लेकिन कलाम पर अमल करने वाले न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। यहाँ पर लिखा है जो कलाम सुनता है सुनकर भूल जाता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वे शीशे के अंदर अपनी सूरत को देखता है और देखकर चला जाता है, फिर जाकर उसको देखता है कि मैं कैसा हूँ। उसको फिर आईना देखने की जरूरत है, उसको फिर शीशा देखने की जरूरत है। उसके कलाम के अंदर यह बयान कर दिया गया है कि उसकी इंसान ऐसे है। तो आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को क्या करो, ताकते रहो। ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को ताकते रहो। अब जबकि खुदा ने ताकि बंदा मूसा से कहा, हुक्म दिया, उसने हुक्म को माना और उसको अमल भी किया। और खुदा ने मुकद्दस नूह को कहा तू कश्ती तैयार कर, उसने हदायत पाकर खुदा के डर और खौफ से अपने लिए अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। खुदा के कलाम पर उसने अमल किया। अब आप क्या है, सुनने वाला ईमान नहीं होना चाहिए, रस्मी ईमान नहीं होना चाहिए, वक्ती ईमान नहीं होना चाहिए, और आपका क्या फर्जी ईमान नहीं होना चाहिए, आपका टाल मटोल वाला ईमान नहीं होना चाहिए। खुदा ऐसे ईमान को नापसंद करता है। और खुदा का बंदा कलाम के अंदर हनूक के बारे में बयान करता है। हनूक 365 साल 3 सदियां 65 ईयर की तरह, और कलाम में लिखा है वो बेऐब रहा और वो बेदाग रहा और वो खुदा के साथ 600 चलता रहा और हनूक खुदा को पसंद आया और जिंदा आसमान पर ठहरा गया। जब आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे, आप उसकी हमेशा की जिंदगी से क्या बाहर रह जाएंगे, उस निजात की कश्ती से आपका कोई हिस्सा नहीं होगा जब आप इस तरह का ईमान नहीं रखेंगे। अब आप यीशु के नाम में हम कलाम के अंदर देखते हैं कि मेरा कोई नाम पूछे तो मैं क्या कहूँ, मेरा नाम इरशाद मसीह है। मैं आपको एक अक्सर देता हूँ कि जब एक भैंस है उसके ऊपर आप मसीह लिख देते हैं तो क्या वो मसीह बन जाए?
नाम के आगे मसीह लिखने से हकीकी मसीह नहीं हो, वो भैंस की भैंस ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे नाम के आगे मसीह लिखने से मैं सिर्फ एक नामी मसीह हूँ, पहचानी मसीह हूँ, फर्जी मसीह हूँ, वक्ती मसीह हूँ। लेकिन खुदा का कलाम जो कलाम के अंदर बयान कर दिया गया है वो अमल मानता है, वो उसके हुक्म को मानता है। वो कहता है कुर्बानी ना चढ़ा और क्या कर, हुक्म मान, हुक्म मान। तो खुदा आज आप और मुझसे यही डिमांड करते हैं कि आपकी लाज के अंदर अमली जमा होना चाहिए। ईमान क्या कहता है? ईमान सिर्फ यह नहीं कहता आप चर्च के अंदर चले जाओ, हफ्तों साइज कर लो, दुआ कर लो, कलाम सुन लो और हदिया नजराने दे लो। खुदा कहता है मैं अपने हुक्मों को अजीज रखता और ईमान भी यही डिमांड करता। और जब आप हुक्म नहीं मानते आपका कोई ईमान नहीं है। तो जब आपका ईमान होगा तो फिर खुदा का वादे आपकी जिंदगी के अंदर। मैं अक्सर जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं उनसे पूछता कि आप खुदा को पसंद करते हैं? आप भी खुदा को पसंद सब पसंद करते हैं कि नहीं करते? पूरे जमीन पर हर सी नफ्स, हर बशर उस जिसको पसंद करता। कभी ये सोचा कि हम तो खुदा को पसंद करते हैं, आया मैं भी उसे पसंद न करूं? जब यीशु को आप कहते हैं कि यीशु मेरा है तो यीशु ने कह दिया तू मेरा नहीं है, तेरे अंदर ईमान का वो बयान नहीं है। हर किस्म का लेवल होना चाहिए। आप अभी इन शिफाओं के अंदर ही पड़े हैं, इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। खुदा कहता है हमेशा की जिंदगी की तरफ, आने वाला की चीजों के ख्याल में रहे। और जब हमेशा की जिंदगी के अंदर आप सोचेंगे तो वहां पर ना गम है, ना बीमारी है, ना आहो नाला है, ना मुसीबत है, ना मुश्किल है, ना परेशानी है। तो आप इस दुनिया के सर्कल के अंदर घूमते हैं। आप क्या करते हैं? दुनिया की खूबसूरती देख रहे, दुनिया के अंदर खूबसूरत लोग देख रहे, लेकिन कभी खूबसूरती बनाने वाले की तरफ देखो, वो आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करेगा। इस सर्कल से उसी के लोग निकलो। आप इस वतन के अंदर तो हो, लेकिन आप आसमानी हो तो आपके आसमानी ख्यालात होना चाहिए। आपकी आसमानी चीजों के ख्याल के अंदर आपका रहना बनता है। आप जमीनी लोग नहीं हो, आप खुदा के चुने हुए लोग हो। तो आपका विजन, आपका प्यार, खुदा ने अपने शागिर्दों को क्या किया था? एक नसीब प्यार। कौन सा प्यार? कि जाओ सारी दुनिया में जाकर मंदिर की खुशखबरी फैलाओ। आज ईमानदार हो, आपका ईमान छोटा नहीं और थोड़ा ईमान नहीं, महदूद ईमान नहीं। मत्ती की इंजील के अंदर बयान किया गया है, राई के दाने की मिसाल दे दी गई है। बहुत सारे खातमे इसको पेश करते हैं कि छोटा सा ईमान, गैर मामूली ईमान, थोड़ा सा ईमान नहीं। खुदा ऐसे ईमान की डिमांड नहीं करता। खुदा आपका बढ़ता हुआ ईमान, जिंदा ईमान, बालिग ईमान, वो ईमान जो बोलता हुआ, वो ईमान जो मुजदाद रूनुमा, वो ईमान जिसमें खुदा की हजूरी हो। और राई का दाना जब जमीन के अंदर बोया जाता है तो वो फिर जब उगता है, चाहे गंदम का दाना है, चाहे सरसों का दाना है, तो जब आप उसका पौधा देखते हो वो एक दाना नहीं 300 दाना लेकर आएगा, बहुत सारे दाने लेकर आएगा। तो खुदा आपके अंदर भी ऐसे ईमान का तकाजा करता है। जहां पर लिखा है पहाड़ को हुक्म दे तो क्या करेगा? यहाँ से सिरक जाएगा। कभी दुनिया में आपने पहाड़ों को तब्दील होते मुश्किल देखा है? नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर तूफान आ जाए, आंधी बर्फा हो जाए, आपके अंदर मुसीबतें आ जाए, शरीर आपके खिलाफ उठ खड़ा हो, जब ईमान के अंदर आप यीशु का नाम लावे तो पहाड़ की तरह वो तूफान और आंधी क्या होगा? आपसे दूर चला जाएगा। आपका ख्याल, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका दुआ करना, आपका चाल चलना ईमान की हालत के अंदर हो। तो मेरे अजीजों, जब कौम बनी इस्राइल का ईमान था तो वहां पर क्या लिखा है? पहले गुलदम पर जाके बंदा मुकद्दस मूसा ने जब खुदा को पुकारा तो नामुमकिन काम मुमकिन हो गए। और तो उन्होंने भी, फरौन ने भी वहां सजदा किया। खुदा ने ईमान वालों को बचाया और जो बुत परस्त थे
उनकी नस्ल का नाम ही नहीं दुनिया के अंदर। तो मेरे अजीजों, ईमान कैसे पैदा होगा? जब आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम होगा तो आपके अंदर कदस तो खुदा से क्या कहते हैं? खुदा से यही कहता है, ऐ मेरे खुदा मुझे पाक दिल दे, पाक दिल दे, पाक दिल दे। जब पाक दिल होगा तो खुदा को पसंद आ जाओगे। जब पाक दिल नहीं है तो आप खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं आ सकते। तो आपके दिल के अंदर जब कलाम होगा तो खुदा के अंदर लिखा है कि जिनके दिल के अंदर कलाम है वो गुनाह नहीं करते। तो दिल के अंदर जो कुछ है वही तुम्हारे मुंह से, और कलाम के अंदर लिखा है ईमान लो, बपतिस्मा ले और तू निजात पाएगा। और निजात का अपना क्या करता है? रास्तबाजी के लिए आपने दिल से ईमान आना। कैसे ईमान आना है? तो जब दिल के अंदर कलाम होगा तो ईमान आएगा। तो आप अपने मुंह से क्या करोगे? अकरार करोगे और निजात आपका मुकद्दर बन जाएगी। कलाम के अंदर लिखा है जो मुझ पर ईमान लाता है उसके अंदर से जैसे किताबे मुकद्दस के अंदर आया है जिंदगी की पानी की नदियां जारी करता है। और सामरी औरत को देखे खुदा क्या कहता है? अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि कौन तुझसे क्या कहता है और फिर तू मुझसे मानती। अब ईमान हमारा है नहीं, उस पर हम अमल करा है नहीं, हमारी चाहता हमारी जिंदगी के अंदर है नहीं है, और हम उससे दुआ भी करते हैं, हदिया नजराने भी देते हैं, इबादत के अंदर भी शरीक है, हम बरकत नहीं बल्कि उसको कसमना करते हैं। कलाम के अंदर लिखा है क्या तुम मुझसे ज्यादा जोर आवर हो? क्या मुझसे ऐसा करते हो? तो मेरे अजीजों, कलाम के अंदर बयान किया है कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये जो बदन है जो आप गीत में गा रहे थे, जो बच्ची इकरार करा रही थी, यीशु ने अपना पाक बेशुमार कीमती खून बहाकर इस बदन की कीमत चुकाई। तो ये बदन तेरे ईमान की हालत में होना चाहिए। गैर ईमान के उसे पसंद आना। और कलाम में लिखा है यीशु पर ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा, निजात पाएगा और रास-पास ईमान से जीता रहेगा। एक रास-पास की दुआ से पूरा शहर सरफराज होता। आज मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं परखता जरूर हूँ, चेक जरूर करता हूँ। जहाँ वही की कहता हूँ जिस चर्च के अंदर, जिस मुकद्दस महफिल के अंदर कि इतनी इनकी खिदमत हो गया, लेकिन दुआ से पता नहीं। कमजोरी कलाम के अंदर नहीं, कमजोरी इंसान के अंदर है। कलाम कैसे नाज़िल होता है? जैसे मुकद्दस मूसा बहरे गुलजों पर फरियाद करता है तो खुदा उसकी आवाज़ को सुनता है, अपने कलाम को नाज़िल करता है और पानी के अंदर से रास्ते बना देता है। जब बंदा ठीक होगा तो जब फरियाद करेगा तो खुदा काम करेगा। हालेलुया, खुदा काम करेगा। खुदा हमारा ऐसा खुदा नहीं है वो हम उसको गैर मामूली और आम सा लेते हैं। खुदा को हम क्या करते हैं? गैर मामूली और आम सा। आज यकीन जाने आप जब उसकी हुजूरी में आते हैं, जैसे ये बेटी कह रही थी, आप हम दोस्त सताइश कर, आपको पता है मैं यीशु से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको मिलने का ढंग भी आना चाहिए, अंदाज भी आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए और तमीज भी आनी चाहिए। हम जाते हैं जी नॉर्मल जाना है, नॉर्मल खुदा का खातम कहता है जब मैं खुदा के हुजूर जाता हूँ इस कदर संजीदा हो जाता हूँ, इस कदर संजीदा होता हूँ, मैं रोता हूँ। आज मेरी अदालत है, आज मेरा इंसाफ है, खुदा तू मुझे माफ कर। आपका ऐसा ईमान होना चाहिए। हालेलुया, ईमान के अंदर रहकर जिंदगी बसर करें। जब ईमान देखेंगे इसहाक को कुर्बान करने के लिए यूनानी औरत का ईमान देखें, वो गैर कौम से ही है, तो यीशु उसको क्या कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। और मैं आगे क्या कहता हूँ कि अपने आका कुत्ते भी तुम्हारे
ऐसे खुदा फिर क्या करता है? उसके ईमान की तरफ आपकी जिंदगी के अंदर जितना मर्जी शोर शराबा हो, लोग जितनी मर्जी तानाजानी करें, लोग आपको बुरा बुरा करें, मसीह की खातर आपको लाहम तान उठानी पड़े, लेकिन ईमान की हालत में आप रहे तो फिर खुदा आपकी तारीफ करेगा। इस कलीली और उनकी तरह क्या तेरे ऐसा ईमान मैंने इस्राएल के अंदर, ऐसा ईमान खुदा चाहता है। मेरे जो बेटे और बेटियां ईमान के अंदर कमजोर हैं, वो अमल ऐसा करें, अमली लाइफ के अंदर आ जाए, अमली जामा पहना है। आप बाहर ना देखें, बाहर कुछ भी नहीं है। आप इस कलाम को देखें, आप खुदा को देखें, खुदा के कलाम की आवाज को सुने। आप दाएं बाएं नहीं देखें, यही हमारी कमजोरी है। बैठे इबादत में हैं, हम किसी और तरफ देख रहे हैं। हमारा अजीज आले उठकर इबादत शस्त्र, मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता था, इबादत हो रही है और हम खा रहे हैं। मैं तो इससे भी बड़ा बाजार, इससे भी बाजार होता। इबादत है तो इबादत है, जब उसकी आवाज सुनते हैं तो क्या होता है? उसकी आवाज में डर और खौफ होता है। जब डर और खौफ होता है तो फिर क्या करते हो? हिकमत से ममूर हो। और बहुत सारे खातून था, कहते पैसा बहुत बड़ी गली है, यीशु ने मेरे लिए इसलिए पर भी बड़ी गली, दुख भी बड़े बर्दाश्त किए, ऐसा मुझे बड़ी गली बहुत से बात में देखता हूँ, उनके बहन से खुदा हमारा कुछ और कहता है, हम कुछ एक मिसाल देकर ऐसे घर के अंदर एक बाप है, वो अपने बेटे को जब घर से बाहर निकला तो एक काम उसके सुबह लगा दिया कि बेटा ये काम आपने करना। जब बाप बेटे से मुखातब था तो बेटा बाप की आवाज को सुन रहा था और उसने हाँ भी कर दी। हाँ बाप ये मैं काम कर दूंगा। बाप घर से चला गया, कुछ देर बाद वापस आया, काम वहीं की वहीं, काम वहीं की वहीं रहा। तो मेरे अजीजों, जब बाप आसमानी आपसे कलाम करता है तो जो आपको कहता है, कहना भी ईमान है। जो आपको कहता है आपका काम है वो करना। जिससे खुदा नाराज होता है उन कामों को ना करना, ना सुनना, ना देखना, ना उनकी तरफ तवज्जो होना। और वो ईमान के अंदर जब आप आकर देखोगे तो शेरों के मुंह भी बंद हो जाते हैं। जब ईमान के अंदर आकर काम करोगे आपकी तेजी भी बुझ जाती है। जब आप ईमान के अंदर रहोगे तो जुर्म की दीवारें भी गिर जाती हैं। जब ईमान के अंदर आकर काम करोगे तो आप फाते हो जाओगे, फतह से फटकर आपको गलबा मिलेगा। तो यीशु जिस ईमान की डिमांड करता है, आपका ईमान छोटा, महदूद ईमान, थोड़ा ईमान नहीं, एक टाइम दुआ करने वाला ईमान नहीं, 3 बार दुआ करने वाला, 7 बार दुआ करने वाला, उससे आगे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा दुआ करने वाला आपका ईमान हो। बारिक ईमान के अंदर आ जाओ। निजात की बात है, कलाम में लिखा है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। नाम तो हाजिर करता है, अमल नहीं करता, निजात से महरूम है। ये भी लिखा है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो शर्मिंदा भी नहीं होगा और शरीर को शर्मिंदा करेगा, अपने साथों को सरफराज करता चला जाएगा। तो कलाम सच्चा है। आज आपने अपने अपने तरीके से घर के अंदर बहनी दुआ नहीं करती। दुआ एक अच्छा अमल है, खुदा को पसंद होने वाला अमल है। हरूब की तरह खुदा को पसंद आ जाओ। ईमान के बगैर ये यकीन कर लो, ईमान के बगैर पसंद नहीं आ सकता। पूछो अनखा, पूछो बेटे बेटियों से। मैं यीशु का इकरार भी किया हुआ, तौबा भी किया, बपतिस्मा भी लिया है और मैं मसीह हूँ, लेकिन ईमान का पता नहीं किस तरफ चलना। जैसा खुदा कहता है, यीशु के खानदान के लोग कौन से हैं जो खुदा की मर्जी को करते हैं। इसको तो किताब हियात भी यीशु के खानदान के लोग हैं। तो किताब हियात के अंदर नाम लिखवाने की कोशिश की। किताब हियात के अंदर जिस किसी का नाम ना लिखा हुआ वो आप कबूल कीजिए। ये आपका अपना फैसला है।
ये आपका अपना फैसला। तो जब आप पूरे ईमान के अंदर आ जाएंगे तो फिर नूर के फरजंद भी बन जाएंगे, तो फिर मुकद्दसों के हम वतन को बन जाएंगे। ईमान फिर आपको ये रिगार्ड है। और पौलुस कहता है जिंदा हूँ तो जीसस का काम करता हूँ, खुशखबरी फैलाता हूँ। मर गया तो क्या है? नफा। और जीसस ने कलाम के अंदर फरमा दिया कि ईमान वाले जब मरते हैं उनको ये नहीं होता इतना बड़ा सोया हुआ बंदा उठ जाता। आज के बाद जिसकी जिंदगी के अंदर ईमान कमजोरी है वो अपने आप को देखे आपके पास वक्त है, दौलत है, काम है, दुनिया के अंदर इधर उधर बैठे रहते हैं। या दुनिया में बैठता ही नहीं। मैं कहता हूँ मैं दुआ में रहूँ, मैं कलाम पढ़ता रहूँ, रफाकत में रहूँ, लोगों के अंदर बैठने से मुझे खौफ होती है, मैं जुदा रहता। लोग मुझसे सवाल भी कहते आप अकेले क्यों रहते हो? मैंने कहा मेरा अकेला रहना अच्छा है। आपसे कोई ऐसा दरख्त है जो बगैर जड़ के जिंदा है? कोई ऐसी जिंदगी है जो खुदा के बगैर जिंदा है? हाँ? आपको कोई गलत फहमी है कि आप ईमान के अंदर क्यों नहीं मजबूत होते? आज के बाद तो लोग आप हाथ में खा रहे हैं, मैं आपको आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। हमारा कोई दुश्मन नहीं है भाइयों, बहनों, बेटियों, खुदा के लोगों, हम अपने आप दुश्मन हैं। अपने आप अपनी जान को खुद हलाक कर देंगे। हमारा अपना बदन हमारे लिए खुदा की बादशाही में जाने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को आप दुआ से दूर करोगे। जब दुआ करोगे ईमान बढ़ेगा, जब ईमान बढ़ेगा खुदा के नजदीक आ जाओगे। आप जब बोलोगे ईमान जाहिर होगा, उसकी कुदरत जाहिर होगी। मसीह की खातिर कहां खाने वाले उसको पसंद है। मुकद्दस मूसा ने चंद रोज फराउन के महल में गुलाम का लुत्फ उठाने की बजाय अपने लोगों के साथ मसीह की खातिर लान-तान बर्दाश्त की। हमारे लिए दरबार में खाना बना होगा, सारे खाना शुरू सारे ये नहीं पता होगा ये दरबार से है, इससे मैं मकरू हो जाऊंगा, नापाक हो जाऊंगा, खुदा से दूर चला जाऊं। हमें खाने से गरज है, हमें क्या पता ये ज़राया कहाँ से आ रहा है, ये किस जरिए से हमारे तक पहुंच रहा है। नहीं चावल बने हुए हैं, दरबार के चावल खाने हैं। ये जैसे 10 मालूम गुजरा है, सबीले लगी हुई, क्रिश्चियन सबीले लगा रहे हैं, हमारा और से क्या लेना देना? सबीलों के पानी पी क्या बात है। खुदा कहता आप मकरू हो जाओगे, गैर मोहब्बत और गैर मोहब्बत खाने को मकरू हो जाओगे। जब मकरू हो जाओगे खुदा आपसे कराहत करेगा, ना दुआ सुनेगा, ना दुआ सुनेगा। कामर आसपास वो है जो देख के साफ कामल नहीं बनना चाहता, क्योंकि दुआ में यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज दुआ से किया, सलीब पर दुआ के कैसे काम जाता? दुआ में हमारा दिल नहीं लगता। मुकद्दस अय्यूब को देखो, घुटनों के बल दुआ करता, उसके पैरों पे और घुटनों पे चुटिया बन गई और वो इतने घंटों दुआ करता रहता था। और बेनियन को देखो, कमरा बंद करके दुआ करता है और उसकी माँ का अपना करती है, अंधेर में नहीं करता है। हम तो कहते हैं खाना खा दुआ करते हैं।